یہ ہے چودھری محمد الیاس. چودھری محمد الیاس, یہ چودھری محمد الیاس ہے. لوٹا عمران خان کی فوٹو کو دیکھے اور اس کی جو نشان ہے اس کو دیکھے. چارپائی اس کا نشان ہے. پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے یہ. اور ابھی بھی اس کی ویب سائٹ دیکھے, فیس بک دیکھے تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس کے پر. جو میاں چنو سی پیر ظہور حسین قریشی, یہ اس کا پوسٹر ہے, یہ اس کا پوسٹر ہے. یہ لوٹا میاں صاحب یہ لوٹا نہیں ہے, یہ کس نے آپ کو ووٹ دیا ہے؟ یہ ایک اور لوٹا نہیں بلکہ یہ تو لوٹی ہے. یہ لوٹی ہے. یہ دیکھیں, یہ اورنگزیب کچی ہے کہ کچی ہے؟ یہ اورنگزیب کچرا ہے. یہ اورنگزیب کچرا ہے. یہ کس کی؟ اس کا نشان ہے حقہ اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ. یہ ہے اچھا, یہ ہے میرا خیال میں اس کی تو اگر وزن کرے تو 2 من کا وزن ہوگا. اسد کیسر صاحب, چودھری عثمان علی, اسد کیسر صاحب, چودھری عثمان علی, الفاظ یہ کا, چودھری عثمان علی, یہ لوٹا ہے, اس کا مور نشان اسد ہے. کیسر مور صاحب ایک گزارش ہے, جی, الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں. آنریبل کیا ممبر کروں؟ کے لیے کچرا میں اس کا ہم نے لفظ لوٹا ہم کہا ہے. ایکسپنج کرتے ہیں پلیز. میں نے اور کچھ نہیں کہا. یہ بتائے نا, یہ چودھری عثمان علی, میاں صاحب کو بتاؤ, دکھاؤ کہ یہ لوگ ہیں جو تمہیں ووٹ دے گئے ہیں. یہ آرڈر ان دا ہاؤس. اور یہ مبارک زیب ہے, یہ مبارک زیب ہے, مبارک زیب. یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے, یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے, پی ٹی آئی کا ٹکٹ. یہ دیکھیں, ابھی بتائیں اسپیکر صاحب, میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھو کہ تمہیں جو 5 ووٹ ملے ہیں وہ آپ نے خریدی ہیں, آپ نے رپورٹ دی ہیں, آپ نے خریدی ہیں. آپ نے اس قانون سازی کا جو جس طرح تم نے قانون سازی کیے, تم نے اس ملک کی جمہوریت کو جو ہم نے شیم جمہوریت, یہ شیم ڈیموکریسی, اور تم نے جمہوریت کے نام پہ کالا ڈبہ ڈالا ہے. یہ قانون سازی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں, یہ ہمارا عادل بادئی, میں اسپیکر صاحب سے بھی گلہ کرتا ہوں, عادل بادئی کا یہ الیکشن, یہ عادل بادئی کا الیکشن کمپین کا پوسٹر ہے. یہ ہیرو ہے. اس کو جو ہے, اس کی جو کاغذات الیکشن کمیشن میں داخل کی گئی, یہ ناجائز طور پر غلط دستخط کے تھرو الیکشن کمیشن میں اس کو مسلم لیگ کا دکھایا گیا. اور اس کا یہ پلازا ہے اسپیکر صاحب, یہ ان کا پلازا ہے. ان کے پلازے کو توڑا گیا, بلین روپے کا پلازا ہے اس کو توڑا گیا. یہ بتائیں, مجھے بتائیں, اس طرح جو ہمارے ساتھ جو اچھا 2 سینیٹر صاحبان, وہ چونکہ اس ہاؤس کی نہیں ہے, ہمیں شرم آتی ہے, ہم اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں, ہمیں شرم آتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے, ہمیں شرم آتی ہے. یہ جمہوریت نہیں, اس میں تو آپ جب ڈنڈی کی زور پہ, آپ بندوق کی زور پہ, آپ پھر, اور یہ پارلیمنٹیرین یہاں یہ پارٹیاں کہتی ہے کہ ہم نے کروایا, وہ تم نے کیا کروایا, اور جس نے کیا اس نے کیا, تمہارا کوئی رول نہیں ہے, زور اور زبردستی سے کیا ہے. جناب اسپیکر, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں, نمبر 2, یہ غیر قانونی قانون سازی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سینٹ فیڈریشن یونٹ ہے, اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے, جو خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے. اس میں مجھے بتاؤ کیا سینٹ پورا ہے؟ جو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ایک صوبے کو آپ نے حق رائے دہی سے محروم رکھا, ایک صوبے کو آپ نے جو اس کا حق تھا اس سے محروم رکھا, اور اس پہ کہتے ہیں. اور دوسری بات, یہ اسمبلی بھی
फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि ये असम्बली, जनाब स्पीकर, ये असम्बली भी इस वक्त नामुकम्मल है। ख़वातीन की सीटें जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनती थी और तहरीक इंसाफ का हक बनता है, अभी तक वो ख़वातीन की जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है। माइनॉरिटी का हमें हक नहीं दिया जा रहा है। तो न को भी असम्बली पूरा, न सेनेट पूरा, तो आइन साजी होती है, कानून साजी होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत है, जमहूरियत की पता है, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का शिकस्त है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है, पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है। ये जो आप कहते हो कि हमने आइन पास करके बहुत बड़ा काम किया, शायद तारीख में, मैं इसलिए मैं पीपल पार्टी से ज़्यादा गिला करता हूँ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा था 1973 आइन, इसके लिए जो कानून साजी जिस तरीके से हुआ, उसने तमाम हदें पलांग की, उसने कोई अखलाकी हद नहीं छोड़ा, उसने चादर चादीवारी को पामाल किया, ख़वातीन की बेहुरमत हुई, लोगों के घर मसमार हुए। और उसके बावजूद ये पता करके, भाई अगर आपने करना है तो डिबेट करवाओ, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखो, उसके ऊपर जो ना बड़े बड़े डिस्कशन करवाओ, सेमिनार करवाओ। जुल्म और जबर से कोई कानून साजी हम नहीं मानती। नंबर 2, जनाब स्पीकर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस सूबे से हमारा ताल्लुक है, उस सूबे की जो इस्लामाबाद में केपी हाउस है, उसके ऊपर हमला किया गया, उसके ऊपर जो है ना रेड की गई और उसकी तकद्दुस को पामाल किया गया। क्या ये मुल्क के कानून के तहत चलता है, आइन के तहत चलता है, या ये मुल्क जो है ना, ये इन्होंने एक राजवाड़ा बनाया है, इन्होंने एक जंगल बनाया है, बनाना रिपब्लिक बनाया है कि ये न किसी कानून को मानते हैं, न किसी आइन को मानते हैं, न किसी की टेरिटरी को मानते हैं। आइन ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि तमाम सूबे जो उनकी फेडरेटिंग यूनिट है, उसकी जो कानूनी लिमिटेशन, उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। आपने हमारे सूबे की तौहीन की, आपने हमारे साथ बदतमीजी की, और सिर्फ ये नहीं, आपने सिर्फ ये नहीं किया, आप जो हमारे फंड्स हैं, जो हमारे साथ आप लोगों की कमिटमेंट्स हैं, जो आपकी इस वक्त पूरी सूबे के साथ जो आपके फंड्स रहते हैं, वो आप नहीं दे रहे, इसलिए कि आपकी एक दूसरी आपके मुखालिफ पार्टी की हुकूमत है। तो क्या इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये आपको फेडरेटिंग में जो ये हमारे सूबे के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये हमारे सूबे में जो एहसास महरूमी बढ़ती जा रही है। और ये भी छोड़े जनाब स्पीकर, ये हमारा इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा का पाटा बेल्ट है, यहाँ सबसे बड़ा इस वक्त कारोबार बंद है। अफगानिस्तान के साथ हमारा सारा दारोमदार, हमारी इकोनॉमी का, हमारे रोजगार का, हमारे 2 वक्त रोटी का सारा दारोमदार वो अफगानिस्तान के साथ कारोबार पे है। आपने अफगानिस्तान के साथ कारोबार बंद किया। यहाँ इर्रेगुलर इकोनॉमी और यहाँ जो इर्रेगुलर का, मुझे बस 2 मिनट में मैं कर रहा हूँ। इस वक्त जो है ना, यहाँ इर्रेगुलर इकोनॉमी है, यहाँ इर्रेगुलर इकोनॉमी है। और ये जो इर्रेगुलर इकोनॉमी है या यहाँ जो वार इकोनॉमी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए जब आप इसको रेगुलर इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट चाहिए। आप वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनाए, वहाँ कारोबार के जराए बनाए, वहाँ उसके लिए ज़िंदगी का। और आप एक ड्रामा करते हैं कि स्मगलिंग हो रही है। हम स्मगलिंग की हिमायत नहीं करते, लेकिन उनकी जायज़ कारोबार को जो बंद किया गया है उसको पूरी तौर पर खोला जाए। बेसूरत जो CDA ने इस वक्त हमारे केपी हाउस को डिमोलिश किया है और उसके ऊपर जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी, फिर कोर्ट में आ गया। हमने फैसला किया तमाम पार्लियामेंटेरियन कि हम जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरह इस सूबे की बुनियादी हुकूक को जो है ना, जिस तरह इन्होंने कब्जे में ली हुई हैं, और हमारे जो हुकूक हैं, एक शहरी की हैसियत से, एक पार्टी की हैसियत से हमारा हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। एक शहरी की हैसियत से हमारा हक है कि हम जिलसी जुलूस करें, लेकिन हमें अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम उस ह्यूमन राइट्स तंजीमों से कि किधर गई तुम्हारी वो जो हमारी MNAs को अगवा किया जा रहा था बराए वोट, उस वक्त ह्यूमन राइट्स तंजीमें कितनी थी। मैं बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, यह भी बात हो रही 27वीं तरमीम का,
मुझे पता चला है कि ये कोशिश कर रहे हो, कल जो मीटिंग हुई है इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ हम पूरी अवाम को निकालेंगे। अभी हम जलसे करेंगे, अभी हम जलसे नहीं, अभी असम्बली होगी, अवाम में असम्बली होगी शुक्रिया। और हम मुकाबला करेंगे। तुम्हें गैर कानूनी और इमोरल इक़दाम के खिलाफ हम अवाम को निकालेंगे जी। थैंक यू। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।